हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मोंटे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। As the examinations are quite close now, this particular time we are supposed to revise all the topics that we have already studied in our study period. तो आई होप आप सब लोगों का अब रिविजन टाइम चल रहा होगा, एग्जाम्स हैं। जिस तरीके से आप सारे टॉपिक्स जो पहले से पढ़ चुके हैं उन्हें रिवाइज कर रहे होंगे। Earlier, I have released a revision video for capital gain and PGBP. I'll share the links along with this video as well. Now, in this video, I am going to discuss some important topics related to the head other sources. Other sources head forms a very important part of our examination, and many a times we are so much focused on PGBP or capital gain that we do not focus on these heads which are comparatively smaller. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं वो ये होती है कि क्योंकि ये हेड्स कंपैरेटिवली लेंथी नहीं है, लाइक अगर हम पीजीबीपी और कैपिटल गेन से इन्हें कंपेयर करें, बी इट हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस, so this gives us an added advantage of scoring good marks, that if we prepare these heads very properly, there is a possibility that we will score good marks on the questions that are based on these topics. So in this video, I'll be covering the major topics related to other sources, and I will be also discussing about what is important from the examination point of view. When you talk about the head other sources, the major sections that we need to discuss are section 56, 57, and 58 of the Income Tax Act. Now, what are these three sections? Section 56 talks about the incomes that are included in the taxability of other sources head. कौन सी incomes other sources में taxable होगी, ये 56 में बताया गया है. 57 deductions जो आपको allowed रहेंगे from the income under the head other sources, and 58 are the cases or expenses on which deduction is not allowed under the head other sources. So let us start by taking section 56. कौन सी incomes जो है वो other sources head में taxable है. The incomes which are much more important, हम उसको थोड़ा सा comparatively detail में discuss करेंगे और बाकी मैं एक बार आपको go through करवाती जाऊंगी. So let us start. The first income that is given to us under section 56 is dividend income. Now when you talk about dividend income, आपका income tax का dividend का definition और जो हम general dividend पढ़ते हैं या देखते हैं is quite broader. So the income tax dividend includes the normal dividend along with the deemed dividend. So let us discuss what is included in the definition, or you can say the term dividend, as per Income Tax Act. So dividend income में आपके जो definitions हैं वो section 222 में covered है, जिसमें कि 222A से लेकर के E तक आपकी dividend की definitions दी गई है. And in these things, all these things are also deemed to be dividend. So if any person is getting any such income from any company, then in that case, that will also be considered as a dividend income. Now the very important point what you need to keep in mind is कि dividend income अगर किसी व्यक्ति को earn हो रही है तो उसके ऊपर जो chargeability रहेगी वो उसके normal income जैसी हो जाएगी. ठीक है? So there is no special rate of tax on dividend. The income will be included in the hands of the assessee और उसकी बाकी income पे जो rate लग रहा है accordingly dividend income would be taxable. So the first point is distribution of accumulated profits entailing the release of company's assets. अगर कंपनी के पास assets हैं और accumulated profits हैं and the company is releasing its assets, which is basically a way that the accumulated profits are distributed to the shareholders, then in that case that distribution shall be considered as a deemed dividend. ठीक है? So first point जो हमने discuss किया, that is related to distribution of accumulated profits entailing the release of company's assets. Distribution of debentures, deposit certificates to shareholders, and bonus shares to preference shareholders. A very important point to be kept in mind here is कि डिविडेंड आप यहाँ पर बोनस शेयर्स की जो बात कर रहे हो, तो अगर कोई कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है शेयर होल्डर्स को या बोनस शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो वो भी उस शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा. बोनस शेयर्स इशूड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज ओनली कंसिडर्ड एज डिविडेंड. तो बोनस अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हो तो वो डीम्ड डिविडेंड में कंसिडर
नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिविडेंड, नाउ दिस टॉपिक हैज अ लिंक विथ कैपिटल गेन हेड एज वेल। आप सब लोगों ने कैपिटल गेन हेड भी पढ़ा होगा, उसमें भी एक टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय कंपनी ऑन लिक्विडेशन। वहां पर आपका ये 222 से लिंक होता है कि जब भी आप इनकम टैक्स पढ़ते हो, लाइक मैं कभी भी पढ़ाती हूँ तो आई ऑलवेज से दिस दैट इनकम टैक्स इज अ एक्ट, लाइक है ना, पूरा एज अ होल हमें उसे समझने की कोशिश करनी है। सो आप जब भी कोई सेक्शन पढ़ रहे हो एंड स्पेसिफिकली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हम एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली, तो हमें चीजों को इंटरलिंक करते आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होते हैं जो कि आपने कहीं ना कहीं पीजीबीपी में भी पढ़े होंगे, उसका इम्प्लीकेशन हो सकता है अदर सोर्सेज में भी आ रहा हो सकता है उसका इम्प्लीकेशन कैपिटल गेन में भी आ रहा हो। तो जब आप पढ़ रहे हैं तब आप उस पॉइंट को भी फोकस करके चलें। सो जब कंपनी लिक्विडेशन में डिस्ट्रीब्यूशन करती है, सपोज कंपनी इज लिक्विडेटिंग, जितना भी उसके पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, दैट प्रॉफिट बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि शेयर होल्डर्स के पास चला जाएगा अब क्योंकि कंपनी तो बंद हो रही है, दैट विल बी डीम्ड टू बी डिविडेंड। सो बेसिकली सपोज कंपनी लिक्विडेट हो रही है, अपनी असेट्स अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, तो इन दैट केस जब कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा तो आपको दो तरीके से, मतलब जो इनकम आ रही है एक तरीके से शेयर होल्डर के हाथ में, वो दो हेड्स में डिवाइड हो जाएगी। जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उस लिमिट उतनी एक्सटेंट का इनकम आपका अदर सोर्सेज में चला जाएगा, और जो आपका कैपिटल एसेट से रिलेटेड आपको कंसिडरेशन मिला है वो आपका कैपिटल गेन में जाएगा। सो यू कैन सी इट, अ वेरी प्रॉपर फ्लो चार्ट इज आल्सो गिवन इन द मॉड्यूल एंड दैट इज हाउ इट इज लिंक्ड। ठीक है, तो वहीं पर हमने 222C भी पढ़ा होता है, यहाँ पर फिर से उसके बारे में बात करी जाती है कि जब आप 222C की बात कर रहे हो, लिक्विडेशन में अगर कंपनी है तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितने भी हैं वो सारे जो भी शेयर होल्डर के पास जा रहे हैं वो डिविडेंड के नेचर में माना जाएगा, वो कैपिटल रीपेमेंट में कंसिडर नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल, अगर कंपनी कैपिटल रिड्यूस कर रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन विल बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड। लास्ट बट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंगस्ट ऑल दिस, जिस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इस 222E। ओके, एडवांस और लोन बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स, सबसे इंपॉर्टेंट लिम्ब ऑफ द डीम डिविडेंड इज 222E। कोई भी कंपनी के पास दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज अप्लीकेबल ओनली ऑन क्लोजली हेल्ड कंपनीज। ओके, तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी सॉरी विच इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, अगर वो अपने शेयर होल्डर को लोन देती है टू अ शेयर होल्डर हु हैज at least 10% or more of voting power in that company, then it is said that this loan shall be deemed to be the dividend in the hands of the shareholder to the extent the company has accumulated profits। तो अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, लेट अस से ABC प्राइवेट लिमिटेड, जिसके पास accumulated profits हैं 8 लाख के, और उसने अपने शेयर होल्डर को होल्डिंग 20% ऑफ वोटिंग पावर इन दैट कंपनी, it gives a loan of rupees 6 lakh, it will be considered as if the loan is a deemed dividend in the hands of the shareholder. However, this will not be true if the company does not have any accumulated profit. So basically deemed dividend के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे तभी अप्लाई होते हैं जब आपके पास accumulated profit है। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की अगर हम कोशिश करें कि कंपनी डिविडेंड न देते हुए अगर किसी और तरीके से प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, डिपार्टमेंट को डाउट है, तो उन्होंने बोला हम तो इन सबको क्या मान लेंगे, डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। सिमिलरली इस केस में भी अगर प्रॉफिट्स है तो डिविडेंड देने की जगह अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि यार आप तो लोन दे रहे हो, तो हम तो इस लोन को क्या मानेंगे, डीम्ड डिविडेंड मानेंगे। एक चीज हमेशा याद रखनी है, कोई भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अगर डीम डिविडेंड मान लिया गया है और आगे चल करके कंपनी उसमें से एक्चुअली डिविडेंड दे दे, जरूरी तो नहीं है ना सारे ट्रांजैक्शंस गलत, तो जेन्युइन ट्रांजैक्शंस भी तो हो सकते हैं। तो अगर कंपनी ने आगे चल करके उसमें से एक्चुअली लोन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो फिर से वो पैसा जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आप उसको एज अ डीम डिविडेंड उस प्रॉफिट के शेयर को शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल कर चुके हो, तो अलग से जब अगर वो एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है स्पेसिफिकली एज अ डिविडेंड, देन इट इज नॉट सपोज्ड टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द assessee. Now, exceptions of 222A, as I always say, income tax is a law of exceptions and exceptions are the favorite part of institute.
जब भी क्वेश्चंस की बात आती है, एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है। सो कब ऐसा होगा कि इस केस में आपका जो डिविडेंड है उसे डीम्ड डिविडेंड, मतलब जो लोन है उसे डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। सो द फर्स्ट इज लोन ग्रांटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आपका नॉर्मल बिजनेस ही लेंडिंग का है, आपका फाइनेंशियल नेचर का बिजनेस है और आपने उस बिजनेस के चलते ही आपने अपने शेयर होल्डर को लोन दिया है, तो वो डीम्ड डिविडेंड में नहीं इंक्लूड होगा। ऑल्सो इफ, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ द डिविडेंड पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट द डीम्ड डिविडेंड, अगर एक्चुअली डिविडेंड इशू हो जाता है तो फिर वो वापस से डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ऑल्सो one more point you are to be one more point that is to be kept in mind in this case is that if there is any trading advance, this has been given as a separate circular, if there is any trading advance, सपोज आप आपके शेयर होल्डर के साथ डीलिंग करते हो, परचेज सेल करते हो, तो डीलिंग अगर आपका जो ट्रेडिंग नेचर का एडवांस है वो डीम डिविडेंड में नहीं आएगा। ओके, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लोन। क्रेडिटर के रूप में है अगर वो शेयर होल्डर आपकी बुक्स में, तो उसे स्पेसिफिकली लोन नहीं बोला जाएगा। दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ डीम्ड डिविडेंड। लास्टली वन मोर पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इन 222E इज, या तो आपका जो लोन है वो शेयर होल्डर को डायरेक्टली दे दिया जाए तो भी वो डीम डिविडेंड अट्रैक्ट करेगा, या फिर अगर आपने किसी ऐसे कंसर्न को लोन दिया है, कंपनी ने कैसे इसी कंसर्न को लोन दिया है जो कि जिस कंसर्न में उस शेयर होल्डर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो भी डीम डिविडेंड में ही कंसिडर किया जाएगा। So these are the major points that are to be discussed under 222E, 222A to 222E. Talking about what is the meaning of accumulated profits, तो बाकी के सारे 222A से लेकर के E तक, एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ लिक्विडेशन, सारे ही केसेस में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस दिन आपने वो एक्टिविटी करी है उस दिन तक जितना प्रॉफिट है वो कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जब हम 222C की बात करते हैं, वहां पर आपको सिर्फ अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन कंसिडर करना है। रीजन बीइंग, जब आप लिक्विडेशन कर रहे हो कंपनी का, as soon as the company is liquidated, the date of liquidation, though it has not yet paid back its capital or creditors, but the company has lost the existence. So जैसे ही लिक्विडेशन की डेट आएगी, आपका accumulated profit का कंप्यूटेशन वहीं तक होकर के रुक जाएगा। So these are the major points to be kept in mind for dividend. Moving on to the next income, casual income, any kind of casual income which you have earned. So जो भी हमारी लॉटरी वगैरह की इनकम्स होती है, गैम्बलिंग और ये जो सारी इनकम्स होती हैं, और दैट आर टैक्स्ड अंडर द हेड अदर सोर्सेस एट द रेट ऑफ 30%, फ्लैट 30% पे टैक्स होगा, और कोई इसमें से आपको बेनिफिट एग्जेम्पशन वगैरह अलाउड नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर हॉर्स रेस। सो दैट विल कम सेपरेटली व्हेन वी विल टॉक अबाउट द डिडक्शंस। ओके, so casual income is taxed at the rate of 30%. Another very important section, 5627B, talking about again a closely held company issuing shares at a value exceeding the fair market value of that share. See, companies, or basically if you talk about income tax department, is majorly concerned about generating money which is unaccounted in nature. कोई भी ऐसा पैसा जो कि डिपार्टमेंट को लगता है अनअकाउंटेड है, जिसका हिसाब नहीं लगाते आ रहा है, उसके ऊपर टैक्स लगाना गवर्नमेंट की सबसे बड़ी परेशानी है कि कैसे ऐसे सोर्सेस को पकड़ा जाए जहां से हम इनके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर सके। So similarly, what happens many a times, a closely held company may be issuing shares at a value higher than what the fair market value is and keep it parked as share application which does not enter into the computation of income. So for stopping that or for avoiding those transactions, डिपार्टमेंट ने बोला कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है जो कि शेयर्स इशू कर रही है एट प्रीमियम, and if the value of the offer value of the shares is more than the fair market value, then the difference between the fair market value and offer value will be deemed to be income under the head other sources. तो सिंपल एक एग्जांपल लेकर के चले, सपोज करें कि उन इशू कर रही है कोई कंपनी शेयर्स, लेट अस सपोज 10,000 शेयर्स, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 160, ओके, एंड द इशू प्राइस इज 180 रुपीज पर शेयर, फेयर वैल्यू इज फेस वैल्यू इज 100 रुपीज पर शेयर। तो आपको चेक क्या क्या करनी है, जो बेसिक कंडीशंस, सबसे पहले आपको एग्जाम में ये देखना है कि वो कंपनी क्लोजली हेल्ड है या नहीं।
कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है आपको अदर कंपनी दे दे, तो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, शेयर्स इशू कर रही है एट प्रीमियम। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू नहीं हो रहे हैं, मतलब फेस वैल्यू पे इशू हो रहे हैं सपोज, और भले ही और आपके एफएमवी से ज्यादा पे हो रहे हैं, then too this section will not get tracted. And lastly, what is the fair market value and offer value? So let us suppose कि आपकी जो फेस वैल्यू है वो 100 है, आप इशू भी 100 पे कर रहे हो, मतलब इशू इज नॉट एट प्रीमियम, इशू इज एट पार, और आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 95 रुपीज। ओके, 95 रुपीज की फेयर मार्केट वैल्यू, तो आप फेयर मार्केट वैल्यू से तो ज्यादा में ही इशू कर रहे हो, लेकिन technically this issue is not at premium, therefore 5627B shall not be attracted. So क्या क्या ध्यान रखना है हमें? If a closely held company issues shares at premium at a value more than fair market value, the difference between the fair market value and the offer value shall be chargeable as income under the head other sources under section 5627B. Okay, so this point is to be kept in mind whenever you are solving any question. कब कब apply नहीं होगा? So this particular section shall not be applicable in certain cases. So what has been provided to you? Let us understand. The particular section specifically says that the amount received from a resident person. तो अगर non resident से आपको कोई पैसा मिल रहा है, this I am explaining for the November 23 examination. Okay, so as per up to the November 23 examination, if you are receiving amount from resident person, then also it is not considered as income, और वो आपके 5627B से बाहर रहेगा। ठीक है, एफएमवी कैसे निकालनी है उसका आपको प्रोसेस दिया हुआ है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मोस्टली एग्जाम में आपको एफएमवी गिवन रहेगा एंड अकॉर्डिंगली ही आपको कैलकुलेशन करना रहेगा, है ना, बट यू कैन जस्ट गो थ्रू द प्रोविजंस। Talking about next, interest on enhanced compensation or compensation on compulsory acquisition. Again, this links to your topic from capital gain. I hope you all are very well versed with the capital gain on compulsory acquisition of property. So any capital asset, if it is compulsory acquired, जो compensation मिलता है उसे consideration मान करके उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। हम बात कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट की, क्योंकि कंपनसेशन और कैपिटल गेन तो वहां चला गया, लेकिन सपोज अब हो सकता है कंपनसेशन आपका अग्री हो गया, लेट अस सपोज 10th of April 2022 को, और एक्चुअली आपको वो कंपनसेशन मिला है 10 महीने बाद, तो सरकार आपको उस 10 महीने पे मान लो ब्याज दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है कि हमने आपको टाइम से पेमेंट नहीं किया, उसके लिए हम आपको इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं, तो इस इंटरेस्ट के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। लेकिन क्योंकि ये कहीं ना कहीं असेसी की गलती नहीं है, फिर भी असेसी की इनकम तो है, तो 50% टैक्सेबल होता है। 50% जो है वो exempt हो जाता है, उसका डिडक्शन मिलता है, बेसिकली नॉट exempt but it is deductible under 57, that also we'll discuss when we'll discuss section 57. And also one more point to be kept in mind is that this is supposed to be taxed only on cash basis. जब आपको वो compensation actually receive होगा तभी आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, अक्रूअल कॉन्सेप्ट पर टैक्स आप नहीं दोगे, भले ही आप बुक्स में अक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो, इस इनकम को आपको कैश बेसिस पर ही टैक्सेबल करना होता है। चलिए नेक्स्ट 5629, 5629 इज अगेन लिंक टू योर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आप लोगों ने एक एडवांस फोर फीचर का सेक्शन 51 पढ़ा होगा कि अगर सपोज आप कोई घर बेचने निकले, कोई प्रॉपर्टी बेचने निकले, कोई कैपिटल एसेट बेचने निकले, लेट अस से घर या लैंड, तो आपने वो लैंड बेचने निकले, आपने एक एडवांस लिया सामने वाले से, और फिर आगे चल करके आपका जो नेगोशिएशन है वो फेल हो गया और आपने वो जो एडवांस है वो फोरफिट करके रख लिया। 2 साल बाद आपने फिर नया बायर ढूंढा, आपने आपकी प्रॉपर्टी सेल कर दी, तो पुराने प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या होता था कि ये जो एडवांस होता था वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस हो जाता था, which resulted in a loss to the seller, reason being indexation. मोस्टली ये दिक्कत आपके इमोबल प्रॉपर्टीज में आती है, और इमोबल प्रॉपर्टीज में ही मोस्टली एडवांस फोरफीचर और ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो सपोज मेरी प्रॉपर्टी थी बहुत पुरानी, मान लो 2001-2002 की, और मैं बेच रही हूँ आज के इंडेक्सेशन के हिसाब से, तो बीच में कभी तो 2010-11 का कोई एडवांस फोरफिटेड था,
तो उतने अमाउंट पर मेरा इंडेक्सेशन भी खत्म हो गया क्योंकि मैंने उसको कॉस्ट से माइनस कर दिया. दिस was a problem due to which there was an amendment and they said that any advance which you have received on or after 1st of April 2014 that will not be reduced from the cost of acquisition. उसकी जगह पर it will be a specific income under the head other sources. तो क्या बोला है आपको कि advance received and forfeited on or after 1st of April 2014 after this amendment would be subject to tax under 5629. तो आप इसको cost से minus नहीं करोगे. अब एग्जाम में ध्यान देने वाली बात क्या है? एग्जाम में ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको डेट ऑफ फोरफीचर अभी भी पुरानी दे सकते हैं वो कि रिसीव और फोरफिट 1/4/2014 के पहले हो गया. सपोज अगर ऐसा लिखा है तो फिर इन दैट केस आप वही पुराना प्रोसेस फॉलो करोगे. इसीलिए आपको पुराना और नया दोनों पता होना जरूरी है. ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ नया पता है कि अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करना है और उन्होंने डेट ऑफ रिसीवर फोर फीचर दे दिया 1 अप्रैल 2008 तो आपका जो है वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा. सो एनी ट्रांजैक्शन व्हिच इज डन आफ्टर दिस विल बी कवर्ड, अदरवाइज आप उसको कवर नहीं करते हो. चलिए आ जाते हैं ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ अदर सोर्सेस and the most favorite section for the purposes of examination, that is 56 to 10. 56 to 10 is basically taxability of gift provisions. सिंपल सी अगर मैं बात बोलूं तो अगर आपको आपकी कोई भी असेट, टू बी वेरी प्रिसाइज, सम ऑफ मनी, तीन चीजें हैं जो इसमें कवर होती हैं. सम ऑफ मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी. अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन या फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन रिसीव होती है तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एज एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जिसे हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं गिफ्ट. कि मुझे पैसे मिले, लेट अस सपोज मुझे 1 लाख रुपए मिले और बदले में मैंने कुछ नहीं किया है, कोई कंसिडरेशन किसी के बदले का नहीं है, बस ऐसे ही मुझे किसी ने आउट ऑफ गिफ्ट, आउट ऑफ जस्ट थिंग 1 लाख रुपीस मुझे मिले हैं. तो इन दैट केस दैट इज विदाउट कंसिडरेशन, सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ गिफ्ट इन माय हैंड्स. Talking about the provisions related to money, immovable property and movable property, what will be the taxability provisions? So in case of money, when you talk about money, the case is only possible is of without consideration. मनी में आपका इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो ही नहीं सकता. आपको जो पैसा मिला है वो फ्री में मिल गया, दैट इज व्हाट इज सम ऑफ मनी विदाउट कंसिडरेशन. So in case of sum of money, if you have received sum of money without any consideration in excess of 50,000, अब ये 50,000 अलग अलग लोगों से मिला होगा तो भी टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है, तो सम ऑफ मनी 50,000 अगर आपको रिसीव हुआ है और in that particular case आपका amount if exceeds this particular limit will be taxable as income under the head other sources under section 56 to 10. Okay, so in case of sum of money the provision will be, अगर आपको without consideration sum of money receive हुआ है, it will be taxable in the hands of the assessee under the head other sources. So let us discuss about 56 to 10. So as I told you, 56 to 10 consists of 3 parts broadly. The amount that you are receiving without consideration or for inadequate consideration can be in the form of sum of money or immovable property or movable property. Talking about sum of money, in case of sum of money, if you are receiving any sum of money which is without consideration and the amount is more than 50,000, then that sum would be considered as an income chargeable in your hands under the head other sources. Talking about immovable property एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, बिकॉज दैट इज क्वाइट सिंपल एज कंपेयर टू मूवेबल प्रॉपर्टी.
So first let us talk about movable property. Now movable property basically means property which is not an immovable property. Now before directly moving on to immovable and movable property, it is also very important to understand that what is the definition of property. See, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कोई बहुत ही स्पेसिफिक से पॉइंट पर क्वेश्चन आ जाता है जो कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना। नॉर्मली जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है विदाउट कंसिडरेशन या इन एडिक्वेट कंसिडरेशन एक्सेट्रा, तो हमारा फोकस इस चीज पे होता है कि कंसिडरेशन कितना मिला है, डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो प्रोडक्ट या जो पर्टिकुलर चीज जो आइटम ट्रांसफर हो रहा है वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही नहीं आए। ये सेम चीज कैपिटल गेन हेड में भी बहुत बार होती है। आपको याद भी होगा कि जब कुछ आप मॉड्यूल देखोगे तो कुछ इलस्ट्रेशंस भी उन्होंने दिए हैं। लेट अस सपोज अ पर्सन ट्रांसफर्ड पर्सनल कार. Okay, so now if it is a personal car, then it is not coming in a definition of capital asset because it comes under the case of personal effects. हाँ, अगर वो ज्वेलरी है तो बात अलग है। सो सबसे पहले तो ये हमेशा चेक कर लेना जरूरी है कि उस पर्टिकुलर चीज पे वो प्रोविजन अप्लाई भी हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो डायरेक्टली अपन मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी पे जाने के पहले ये देखेंगे कि प्रॉपर्टी में होता क्या क्या है। सो सबसे पहले आप जो डेफिनेशन देखोगे, अ कैपिटल असेट ऑफ द असेसी। सो अगर कोई पर्टिकुलर चीज कैपिटल असेट ही नहीं है तो उसके ऊपर 56(2)(10) के प्रोविजंस अप्लाई ही नहीं होंगे। ओके, सो अ कैपिटल असेट ऑफ द असेसी, तो ये हमारी वही कैपिटल असेट की डेफिनेशन तो हम सब पढ़ ही चुके हैं कैपिटल गेन हेड में। अगर उस डेफिनेशन में आप फिट नहीं होते हो तो फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपका जो 56(2)(10) है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, सो कैपिटल असेट ऑफ द असेसी नेमली इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ रही है तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एक्सेट्रा, है ना। तो ये आपका जो है ये होता है कैपिटल एसेट। तो अगर वो प्रॉपर्टी है तो ही आपको चेक करना है कि मूवेबल है, इमूवेबल है, और फिर मूवेबल है तो कब 56(2)(10) अप्लाई होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट इज द प्रॉपर्टी covered under the definition of a property. Now, let us talk about movable property. Movable property में आपको ये बोला गया है कि अगर कोई movable property आपको without consideration मिली या for inadequate consideration मिली, तो फिर if it is without consideration, if the fair market value exceeds 50,000, then it is taxable. और अगर inadequate consideration है तो difference। सो सिंपल आपको ये लॉजिक रखना है कि जो गिफ्ट एलिमेंट आपके हाथ में आ रहा है, 56(2)(10) को नॉर्मली गिफ्ट वो भी कहा जाता है, फ्रैक्शन गिफ्ट, बेसिकली गिफ्ट सेक्शन बोलते हैं इसको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो बेसिकली 56(2)(10) में उनका ये कहना है कि अगर आपको गिफ्ट रिसीव हो रहा है तो टैक्स देना है। तो अगर कोई चीज आपको बिना कंसिडरेशन के मिल गई तो पूरी गिफ्ट हो गई, तो पूरी फेयर मार्केट वैल्यू चेक करनी है। लेट अस सपोज ज्वेलरी, आपको किसी ने कोई इयररिंग्स गिफ्ट किए गोल्ड के, डायमंड के, जो भी, जो कि जिनकी फेयर मार्केट वैल्यू 75,000 है। तो नाउ दिस केस इज एप्लीकेबल दैट यू हैव रिसीव्ड अ मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन, है ना। तो पूरी वैल्यू जितने का आपको गिफ्ट मिला है फ्री में, because that exceeds 50,000, you have to pay tax on the 75,000. Now also keep one thing in mind, 50,000 से ऊपर चला जाता है तो पूरा ही गिफ्ट टैक्सेबल हो जाता है आपके हाथ में। आपको इन दैट केस ये नहीं करना है कि सिर्फ 25,000 टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो नाउ 50,000 है, मोर देन 50,000 है तो 75,000 का अमाउंट है। नाउ ये जो 75,000 का अमाउंट है आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। यहीं पर अगर यही चीज आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के मिली है, तो लेट अस से आपके फ्रेंड की शॉप है जहां से आप इयररिंग्स परचेज कर रहे हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू तो 75,000 है, बट ही इज ऑफरिंग यू टू परचेज द सेम एट 20,000, कि you take it as a discounted price, you take it at 20,000. So basically as a part of gift, let us say it's your birthday, so he is giving you as a gift कि ठीक है, you can pay only 20,000, rest you can take it as a gift from my side. So the difference between the fair market value, and the actual consideration paid to purchase this exceeds 50,000, therefore this amount will be chargeable to tax in your hands. तो क्या देखना है हमको कि या तो
अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो फेयर मार्केट वैल्यू ही 50,000 से ऊपर है, और अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन तो डिफरेंस अगर 50,000 से ऊपर है तो वो आपका 56(2)(10) के एप्लीकेबिलिटी में आ जाएगा। टॉकिंग अबाउट आर 50 for immovable property, 56(2)(10) in case of immovable property. अगेन इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों चीजें हो सकती है, या तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको विदाउट कंसिडरेशन मिल गई, या फिर वो आपको विदाउट कंसिडरेशन मिल गई, या फिर वो आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिली है ना। नो विदाउट कंसिडरेशन अगर आपको मिली है तो आप चेक करोगे वेदर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 50,000। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का सबसे एक्यूरेट जो मेजर माना जाता है वो होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, है ना। सो इफ इट इज मोर देन 50,000 then it is said to be a gift in your hands, and then amount has to be taxed in your hands under the head other sources under section 56(2)(10). तो कोई लैंड आपको मिल गई which is within the definition of capital asset and you have received the land without any consideration whose stamp duty value is more than 50,000, that value will be taxable in your hand. Inadequate consideration again goes same, difference आपको चेक करना है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज का भी ध्यान रखना होता है। फर्स्ट तो आपका होता है डिफरेंस, तो आपको देखना ही है कि क्या हमारा जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज्यादा है। दूसरी आपको एक चीज ये भी चेक करनी होगी यहाँ पर कि वो डिफरेंस 10% के अंदर है या नहीं, कंसिडरेशन के 10% के अंदर है या नहीं। तो अगर आप देखें तो हमारा जो डेफिनेशन बन जाएगा, मतलब हमारा जो कंडीशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन is higher than is more than the higher of 50,000 and 10% of consideration। अब पहले तो समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। सो नाउ सी सिंपल सा लॉजिक है। इसके लिए हमको दो और सेक्शंस को रेफर करना पड़ेगा जो कि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, 50C एंड 43CA। 50C हमने कैपिटल गेन हेड में पढ़ा है, 43CA हमने पीजीबीपी हेड में पढ़ा है। जो रिवीजन वीडियोस मैंने शेयर करे हैं कैपिटल गेन और पीजीबीपी के, उनमें भी इन सेक्शंस का रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। फॉर रिवीजन यू कैन आल्सो रेफर दैट। नाउ कैपिटल गेन आपको 50C में बता देती हूँ, 43CA भी सेम ही है, बस एक छोटा सा एक्सेप्शन है, बट ओवरऑल 50C और 43CA पूरा सेम है। बस ये कैपिटल गेन में लगता है, ये पीजीबीपी में लगता है। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, कैपिटल गेन है जो कि कैपिटल एसेट है आपकी, अगर आप वो ट्रांसफर करते हो फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, बेसिकली आप जो बेच रहे हो, आपको जो वैल्यू रिसीव हो रही है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम रिसीव हो रही है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। However, one more important point which is to be kept in mind that if the stamp duty value is more than 110% of the sales consideration, then only this provision is applicable। मतलब आपका जो सेल्स कंसिडरेशन है, लेट अस सपोज आपका सेल्स कंसिडरेशन है 40 lakhs, 10% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन इज 4 lakhs, तो टोटल जो अमाउंट है वो हो जाता है 44 lakhs, है ना। अब अगर आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो इस 44 लाख से ज्यादा है, मतलब आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 lakhs है, तो फिर आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है that will be deemed fair value, deemed full value of consideration in under section 50C। and also if the difference is within this 10% limit, मतलब अगर आपका जो अमाउंट है वो 2 लाख के अंदर, लेट अस से आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 42 lakhs, तो फिर आपके केस में 50C अट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज आपका जो डिफरेंस है वो 10% के अंदर है, करेक्ट ना। क्योंकि ये छूट बेचने वाले को दी गई है तो खरीदने वाले पे भी अप्लाई होगी। सो इफ यू परचेज अ प्रॉपर्टी for inadequate consideration, then gift provisions would be attracted if the difference between the stamp duty value and the consideration, the difference between the stamp duty value and the consideration is higher than या is more than the higher of 10% of consideration और ₹50,000। तो इन शॉर्ट आप इसको शॉर्ट में समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि इन दोनों से अगर आपका डिफरेंस ज्यादा है तो आपके ऊपर 56(2)(10) लगेगा, डिफरेंस शैल बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स, अदरवाइज नॉट।
कैसे समझते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल जिसमें हम दोनों का पर्सपेक्टिव समझेंगे, सेलर का भी और बायर का भी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेक्शन साइमल्टेनियस एप्लीकेशन में आते हैं। इनको मैं थोड़ा प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगी आपको, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और 50C और 56-10 ये जो दोनों सेक्शन है दोनों एक साथ अप्लाई होते हैं, तो इसीलिए इनके ऊपर आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सो 50C में आपको बोला है कि बेचने वाले पे लगेगा। 56 स्टूडेंट टॉक्स अबाउट द परचेजर। आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। सो लेट अस सपोज द सेल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज 50 lakhs. Okay, the sale value is 50 lakhs and the stamp duty value is, let us say, 52 lakhs. ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 52 lakhs, कंसिडरेशन इज 50 lakhs. अब 50C क्या बोलता है, अगर आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है दैट एक्सीड्स 110% of the sale consideration, that exceeds 110% of the sales consideration, then that difference, the amount of stamp duty value shall be deemed to be the full value of consideration. तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का अगर अमाउंट 110% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन से ज्यादा है, this condition is not satisfied in given case, therefore the actual consideration will be considered for the purposes of computation of capital gain. Okay, talking about 56 to 10, in case of 56 to 10 आपको चेक करना है कि ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 लाख का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में और आपके कंसिडरेशन में जो डिफरेंस है वो आ रहा है 2 लाख का, है ना। नाउ दिस डिफरेंस इज मोर देन 50,000। जो हम मूवेबल प्रॉपर्टी में तो हम यही देखते हैं कि डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल, नहीं है तो नॉट टैक्सेबल। तो अगर डिफरेंस हमारा 50,000 से ज्यादा है, 2 लाख है, लेकिन क्या वो 10% ऑफ कंसिडरेशन से भी ज्यादा है, तो 10% ऑफ कंसिडरेशन कितना है हमारा, 10% ऑफ कंसिडरेशन इज 5 लाख। इज द डिफरेंस हायर या मोर देन द हायर ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट्स, मतलब 5 लाख से ज्यादा है क्या हमारा जो डिफरेंस है वो, अगर हाँ तो हमारे हाथ में 56 टू 10 अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। तो इन दिस केस आपका जो डिफरेंस है वो 2 लाख है जो कि 5 लाख के अंदर है, therefore 56 टू 10 shall not be applicable। तो ना 50C लगेगा ना 56 टू 10 लगेगा। आप सिंपल ये लॉजिक ध्यान में रखें कि क्योंकि 10% का रिलैक्सेशन बेचने वाले को दिया गया है, खरीदने वाले को भी गवर्नमेंट ने वही 10% का रिलैक्सेशन दिया है कि डिफरेंस अगर 10% के अंदर है तो आपके हाथ में इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मानकर हम 56 टू 10 एप्लीकेबल नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ 56 टू 10। नाउ again in case of immovable property there is one more point to be kept in mind, that in case of residential units the consideration, the limit is 20%। तो जो 10% है उसकी जगह 20% है, अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो क्या बोला है, यूनिट जो है वो ट्रांसफर हुई है 12 नवंबर 2020 से लेके 30 जून 21 के बीच में, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ है और जो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन है वो 2 करोड़ या उससे कम है। सो ये बेसिकली अमेंडमेंट 43CA में हुआ है एंड अकॉर्डिंगली उस चीज का 56 टू 10 में भी आपको ध्यान रखना होता है ना। नाउ अब हमारा अगर प्रायर अग्रीमेंट बन चुका है तो क्या होगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि मूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में आपका पहले से क्या होता है, अग्रीमेंट। नाउ आपको सबको याद होगा 50C और 43CA दोनों में इस बारे में बात करी गई है। इफ देयर इज अ प्रायर अग्रीमेंट देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू of the agreement date shall be taken only if and if only the amount of consideration or part of consideration is transferred by way of account pay check, account pay draft, ECS or any other electronic mode on or before the date of agreement। तो अगर आपकी डेट ऑफ अग्रीमेंट पहले बन चुकी है और अगर उसके पहले आपका कंसिडरेशन ट्रांसफर हुआ है जो कि अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट इन मोड से ट्रांसफर हुआ है, तो फिर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो आप अग्रीमेंट डेट की पकड़ोगे, ना कि ट्रांसफर डेट की। और ये जो भी कैलकुलेशंस करने हैं 50,000 का डिफरेंस, 10% ऑफ कंसिडरेशन, ये सारा उस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के साथ होगा, आपके अभी के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के साथ नहीं होगा। ओके, so this point is to be kept in mind. Now let us talk about that what will happen if the agreement date is prior to the transfer date. So what you have to keep in mind कि जो ट्रांसफर है उस पर्टिकुलर कंसिडरेशन का कुछ पार्ट या पूरा कंसिडरेशन अगर आपने अग्रीमेंट डेट या उससे पहले बाय प्रिस्क्राइब्ड मोड्स ट्रांसफर किया है तो ही अग्रीमेंट डेट की एसडीवी ली जाएगी, अदरवाइज अग्रीमेंट डेट की एसडीवी नहीं ली जाएगी। नाउ देयर इज आल्सो अ कंडीशन
there may be a case that the stamp duty value of the immobile property is disputed by the assessee. Now, if the assessee feels that the stamp duty value that has been assessed by the department is not correct, डिपार्टमेंट ने बोल दिया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 50 लाख आ रही है, तो आपने तो कम पे बेचा है या आपने तो कम में खरीदा है, तो हम तो इस वैल्यू के हिसाब से आपका असेसमेंट करेंगे. But the assessee is of the feeling that no, this stamp duty value is quite excess of what it should be. He can dispute that particular value. Now, in that case, the assessing officer may refer to the valuation officer. Assessee ने बोला तो उसके रेफरेंस पर आप valuation officer के पास जा सकते हो. पर अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने आपके फेवर में डिसीजन दिया, मतलब वैल्यूएशन ऑफिसर ने अगर बोला कि हाँ असेसिंग ऑफिसर गलत है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख नहीं, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 42 लाख होनी चाहिए, तो आपका जो भी कैलकुलेशन होगा वो 42 लाख पे होगा. लेकिन अगर आपके वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोल दिया कि ये वैल्यू तो 50 लाख और कम है, इस वैल्यू इस प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 75 लाख होनी चाहिए, तो फिर वैल्यूएशन ऑफिसर की जजमेंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा. सिंपल सी बात है, आप अपनी अपील लेकर के जा रहे हो, अगर असेसिंग ऑफिसर के और ज्यादा बढ़ा दी उसने वैल्यू वैल्यूएशन ऑफिसर ने, तो कोई असेसी वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर ही नहीं करेगा. सो क्लियरली इट हैज बीन मेंशन दैट अगर उसने वैल्यू कम करी तो आप उसकी वैल्यू कंसिडर करोगे, अदरवाइज जो असेसिंग ऑफिसर ने बोली है वही वैल्यू प्रिवेल करेगी. ओके, सो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑफ 56 to 10 which has to be dealt with 50C or 43CA, ये सारे सेक्शंस में साथ में क्यों पढ़ा रही हूँ, बिकॉज बीइंग अ रिवीजन सेशन, कहीं ना कहीं अब आप लोग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको एक इंटरलिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो मिक्स्ड आ सकता है कि बेचने के वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको टैक्स निकालना है और खरीदने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको टैक्स निकालना है. Also, 50C is applicable in case of capital gain and 43CA is applicable in case of PGBP. मतलब बेचने वाले के लिए अगर वही चीज स्टॉक इन ट्रेड है तो फिर 43CA लगेगा. जिन लोगों के लिए लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो अगर स्टॉक इन ट्रेड होती है तो फिर 43CA अप्लाई होता है, अदरवाइज 50C अप्लाई होता है. इधर खरीदने वाले के लिए एक ही सेक्शन है 56 to 10. एंड अगेन खरीदने वाले के लिए भी आपको प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखनी है, अगर वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आएगा तो ही 56 to 10 अप्लाई होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा. So these are the provisions related to 56 to 10, 43CA and 50C. Also, one more section related to this has to be kept in mind, that is 194IA TDS. कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, एंड इफ द कंसिडरेशन इज एक्सीडिंग अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर अमाउंट, आपको एक प्रॉपर चार्ट भी दे रखा है मॉड्यूल में, देन इन दैट पर्टिकुलर केस इफ द पर्टिकुलर कंसिडरेशन is not less than 50 lakhs, then in that case आपका जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको TDS की एप्लीकेबिलिटी भी चेक करनी है कि 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ consideration shall be chargeable as your TDS. Okay, also when you talk about 194IA, there is also one amendment in your attempt as per your attempt applicable, कि वहां पर अभी तक आपका जो कंसिडरेशन है सिर्फ वही कहा गया था कि 1% ऑफ कंसिडरेशन, अब वहां पर ये चीज का अमेंडमेंट भी कर दिया गया है कि कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अब वो कहीं ना कहीं सिमिलर बेस पर आ गया है. बस एक चीज छोटी सी और ध्यान रखना है कि 194IA में अभी तक आपका वो 10% वाली चीज उन्होंने नहीं डाली है. मे बी दे हैव लाइक लेफ्ट इट इंटेंशनली या फिर भूल गए हैं, हो सकता है आगे पीछे अमेंडमेंट हो जाए, बट बाकी 43CA, 50C, 56 to 10 सब में वो 10% वाला जो गैप है वो भी रखा गया है, लेकिन 56 to 10 में अभी वो कंडीशन उन्होंने नहीं डाली है. तो TDS के लिए आपको प्लेन दोनों को कंपेयर करना है, दोनों में से जो ज्यादा है उसके ऊपर TDS डिडक्ट होगा अगर 50 लाख से कम नहीं है तो. ओके, इट इज नॉट लेस देन 50 लाख, इट इज लेस देन 50 लाख, देन इन दैट केस आपके ऊपर TDS की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी. सो दीज आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड. आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दे दी मैंने. कभी भी आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो ये सारे सेक्शंस अप्लाई हो सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है. चलिए, अब एप्लीकेबिलिटी कब रहेगी वो तो समझ लिया, एप्लीकेबल कब नहीं है. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 56 to 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई एम सेइंग सिंस द वेरी स्टार्ट, की जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोविजन पढ़ रहे हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कब वो सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपके केस में एग्जाम में हमेशा
ये देखा गया है कि एक्सेप्शंस पे क्वेश्चंस पूछने की जो टेंडेंसी है वो काफी ज्यादा है इंस्टीट्यूट की, तो एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आ सकता है ना। सो फर्स्ट इज फ्रॉम रिलेटिव, अगर रिलेटिव से आपको गिफ्ट मिला है तो रिलेटिव की गिफ्ट को एग्जेम्प्ट किया गया है। रिलेटिव कौन होगा, तो उसकी एक बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है, भारत के रिश्तों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई, कि हमारे यहाँ रिलेटिव्स मतलब बहुत सारे लोगों को रिलेटिव माना जाता है जो दिल से गिफ्ट देते रहते हैं हमको, तो उन सबको बाहर कर दिया। क्या बोला है देखो, स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, तो अगर कोई इंडिविजुअल असेसी है उसकी स्पाउस ने उसको गिफ्ट किया है, अगेन दैट इज एग्जेम्प्ट। ब्रदर और सिस्टर ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने का होता है जो कभी कभी क्वेश्चन में वो लोग दे देते हैं कि स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल इज एग्जेम्प्ट। सो बिफोर मैरिज, लाइक इफ द पर्सन इज अ फियांसे वाला केस आपको क्वेश्चन में दिया है, कभी कभी वो लोग दे देते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि दे आर एंगेज्ड बट नॉट येट मैरिड, स्पाउस नहीं बोला जाएगा उसे, है ना, तो वो स्पाउस के केस में नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ब्रदर और सिस्टर, तो आपके जो ब्रदर सिस्टर हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, वो आपको गिफ्ट दें अगर तो। ब्रदर सिस्टर ऑफ द स्पाउस, स्पाउस के ब्रदर और सिस्टर विल बी कंसिडर्ड एज रिलेटिव। ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स, तो हमारे पेरेंट्स, आइदर ऑफ द पेरेंट्स, तो मम्मी के भाई या बहन या पापा के भाई या बहन विल बी एग्जेम्प्ट। लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, तो जो भी इंडिविजुअल है, मेरे जितने भी लीनियल असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स होंगे वो मेरे लिए, अगर वो मुझे गिफ्ट देंगे तो एग्जेम्प्ट हो गया। लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस, तो असेसी के स्पाउस के लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट भी उसके लिए रिलेटिव है, तो अगर ये असेसी है और ये इसका स्पाउस है तो इसके लीनियल असेंडेंट भी इसके लिए क्या हो जाएंगे, रिलेटिव हो जाएंगे, और इसको अगर गिफ्ट देंगे तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड लास्टली, स्पाउस ऑफ एनी ऑफ द पर्संस रेफर टू इन 1 to 6 अबव, किसी भी ऊपर जितने भी लिखे हैं, तो जैसे यहाँ पर लिखा है ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल का तो आपका भाई आपका रिलेटिव है, और आपके भाई की जो वाइफ होगी या है वो भी आपके रिलेटिव है। ओके, सो दिस इज द होल डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। सो दोनों तीनों चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, रिलेटिव की डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि ये डेफिनेशन टू वे नहीं काम करती। बहुत बार ना हम लोग ऐसे ध्यान रख लेते हैं रिश्ते, जैसे ये वाला पॉइंट था हमारा, ब्रदर और सिस्टर ऑफ पेरेंट्स, तो मतलब हमारे लिए बुआ है ना, अगर हम फादर का बोले, फादर की सिस्टर इज बेसिकली बुआ, तो आपको अगर आपकी बुआ गिफ्ट दे रही है तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट है, बट उल्टा होगा जरूरी नहीं है, जिसके हाथ में गिफ्ट रिसीव हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये डेफिनेशन समझनी है। जो दे रहा है और जो ले रहा है वो रिश्ता पूरा एग्जेम्प्ट होगा जरूरी नहीं। सो मामा एंड भांजा इज अ रिलेटिव, yes, no doubt they're relatives, but मामा ने भांजे को गिफ्ट दिया is a different thing and भांजे ने मामा को गिफ्ट दिया is a different thing. okay, so आपको रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव की डेफिनेशन एग्जामिन करनी है एग्जाम में, और कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे रिलेशंस देते हैं जो कि एक तरफ से एग्जेम्प्ट है एक तरफ से नहीं है, तो कैसे पता करोगे, तो याद ऐसे नहीं रखो कि ये रिश्ते एग्जेम्प्ट है, आप ये ध्यान रखो कि लेने वाले के लिए इन इन लोगों से मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्ट है। ओके, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं और इसके अलावा क्या क्या एग्जेम्पशन है। मैरिज, ओकेजन ऑफ मैरिज, शादी के समय जितने भी गिफ्ट्स मिले हैं वो सारे एग्जेम्प्ट रहेंगे। विल बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, अच्छा मैरिज में एक चीज और ध्यान रखनी है, मैरिज ओकेजन पे मिले हुए सारे गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, फिर वो किसी से भी मिले हों। ओके, सो रिलेटिव, फ्रेंड्स, अड़ोसी पड़ोसी, जिसने गिफ्ट दिए हैं मैरिज पे वो सारे एग्जेम्प्ट है। हाँ, रिलेटिव अगर है तो रिलेटिव के केस में आपको कभी भी गिफ्ट एग्जेम्प्ट है। ओके, बाकी 25th एनिवर्सरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है, रिलेटिव से मिला है तो फिर तो बिना कुछ त्योहार के मिला है तो भी एग्जेम्प्ट है। विल, इनहेरिटेंस, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, लोकल अथॉरिटी, फंड, इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये ज्यादा डिटेल में फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। अगेन देयर इज एन अमेंडमेंट इन दिस केस एज वेल, तो जो आपके ट्रस्ट वाले केस होते हैं वहां पर फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि एक अमेंडमेंट आया है, जरूर से आप ट्रस्ट के प्रोविजंस में आप उसको चेक कर लेंगे कि स्पेसिफाइड पर्संस के बेनिफिट के लिए अगर पैसा दिया जाता है 13(3) में प्रिस्क्राइब है, उनके हाथ में 56(2)(10) नहीं लगेगा, भले ही वो पैसा किसी ट्रस्ट से आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए अमेंडमेंट है, आपके मॉड्यूल में भी गिवन है, आप ध्यान रखें, एक बार जरूर इसे क्रॉस चेक करें क्योंकि इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ट्रांसफर, जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है उनसे अगर कोई ट्रांजेक्शन आता है तो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्संस, इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट क्रिएटेड और एस्टैब्लिश्ड solely for the benefit of relative of the individual. कोविड, this is an again exemption amendment for us, नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए ये अमेंडमेंट है। तो अगर कोविड के दौरान किसी पर्सन से कोई अमाउंट रिसीव हुआ है
actually incurred by him on his medical treatment or treatment of member of family कोविड रिलेटेड, अगर कोई ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिला है तो वो एग्जेम्प्ट है। मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, कोई व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई है कोविड के चलते, फ्रॉम द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर से मिला है तो जिसकी डेथ हुई है उसके एम्प्लॉयर ने उसकी फैमिली को कुछ कंपनसेशन जैसा पे किया क्योंकि अकस्मात डेथ हुई, सो ड्यू टू कोविड, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। और एनी अदर पर्सन, अगर वो अमाउंट जो है 10 लाख तक है, 10 लाख से कम या एग्जैक्ट इक्वल टू 10 लाख है, तो डेथ के बाद जो फैमिली को पैसा मिला है वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर वो जो डेथ है वो इलनेस रिलेटेड टू कोविड है एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन एंड सब्जेक्ट टू कंडीशंस नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। ऑब्वियसली लोग फेक अमाउंट भी ट्रांसफर कर सकते हैं ऑन दिस नेम, तो वो एक कंडीशंस लगाना जरूरी है ताकि गवर्नमेंट श्योर हो सके कि एक्चुअली केस है, जेन्युइन है, और इन दैट केस ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। ऊपर जो हमने फैमिली की बात करी, कोविड वाले केस में जो हमने फैमिली की बात करी, तो वहां पर आपकी फैमिली में स्पाउस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल और एनी वन ऑफ देम wholly or mainly dependent on the individual, this shall be included in the definition of family. So these are the provisions applicable under 56 to 10. Now other sources में जो जो incomes chargeable to tax है मेजरली हमने वो पढ़ ली है, बाकी के सारी इनकम्स का मैं आपको एक ओवरव्यू देती जा रही हूँ। कंपनसेशन इन कंसेशन इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर है और वो किसी दूसरे हेड में अगर अभी नहीं हो रहा है चार्जेबल, तो हम यहीं पर उसको चार्जेबल करेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट income chargeable under the head under other sources if not chargeable under the head PGBP। तो अगर कोई आपको sum received by employer assessee from his employees as contribution to any provident fund, तो वो अगर पीजीबीपी में नहीं टैक्सेबल है तो यहाँ पर जाएगा। लेटिंग आउट ऑन हायर मशीनरी, प्लांट ऑन फर्नीचर, सबलेटिंग वाला जो केस हो सकता है, या नॉर्मल लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी वगैरह, अगर वो बिजनेस का पार्ट नहीं है तो अदर सोर्सेज में चला जाएगा। हम लोगों ने जो कंपोजिट रेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में, तो जब कंपोजिट रेंट का केस है और अगर इनसेपरेबल है, आप बिल्डिंग का रेंट अलग से नहीं निकाल पाओगे, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में न डालते हुए उसे अदर सोर्सेज में डालना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज विल आल्सो गो अंडर अदर सोर्सेज। कुछ कुछ एग्जेम्प्ट करे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ। सो पोस्ट ऑफिस में आपको एग्जामिशन मिलता है, एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चन आती है। 3500 है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, 7000 ज्वाइंट अकाउंट। बाकी आपको कुछ और गवर्नमेंट और अलग अलग बॉन्ड्स प्रिस्क्राइब्ड है जो कि एग्जेम्प्ट है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर कोई पैसा मिला है जो सैलरी हेड में या पीसीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं है, तो यहाँ पर टैक्सेबल होगा। और इसके अलावा कोई सी भी इनकम जो इनकम तो है लेकिन किसी दूसरे हेड में नहीं जा पा रही, वो आपकी सारी रेसिडुअल इनकम में कंसिडर कर ली जाएगी, ठीक है। एंड दैट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड अदर सोर्सेज। These are the incomes which are chargeable to tax under the head other sources. Talking about the deductions available under 57, very simple. कुछ कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस है जो आपको ज्यादा ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर वो इनकम आई तो ये डिडक्शंस आपको देने हैं। सबसे पहला है डिविडेंड इनकम में से आपको कौन सा डिडक्शन देना है। तो डिविडेंड इनकम जो है वो पिछले कुछ अटेम्प्ट से काफी इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि उस केस में बहुत सारे मेजर अमेंडमेंट्स आए हैं। पहले डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, जब आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा आज के कुछ साल पहले, बट फिर टैक्सेबल हो गई तो उसमें से डिडक्शन देने लगे वो। तो क्या बोला है आपको, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, वेरी वेरी स्पेसिफिकली दे हैव मेंशन कि सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट नेचर के एक्सपेंडिचर का डिडक्शन अलाउड है टू अर्न सच इनकम। जो डिविडेंड इनकम आपको मिली है, क्योंकि टेक्निकली डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट में खर्चा होता भी नहीं है, तो अगर आपने उसके अगेंस्ट कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस अर्न किया है, सॉरी स्पेंड किया है, मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ सच इनकम विल बी सब्जेक्ट टू डिडक्शन अंडर 57। इसके अलावा अगर आपका कोई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की इनकम है और आपने उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए कोई ब्रोकरेज वगैरह या कुछ कमीशन वगैरह पे करा है, वो आप क्लेम कर सकते हो। इनकम कंसिस्टिंग ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉइज एज कंट्रीब्यूशन टू फंड्स, तो ये हम पीजीबीपी में भी पढ़ते ही हैं कि अगर आपका कोई भी इनकम है जो कि एज अ फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय है, ड्यू डेट के अंदर अगर पे हो गया है अंडर द रिस्पेक्टिव एक्ट्स, तो ही आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। Where the income to be charged under this head is from letting on hire of machinery, plant and furniture with or without building। तो अगर बिल्डिंग के साथ या बिल्डिंग के बिना आपने प्लांट, मशीनरी या ऐसे कुछ रेंट पे दिया हुआ है, which is not a part of your business,
देन आपकी इनकम वो अदर सोर्सेज में चार्जेबल टू टैक्स है, एंड उससे रिलेटेड जो आपके खर्चे हैं कि कुछ रिपेयर वगैरह करवाया आपने मशीनरी पे, कोई भी अपना इंश्योरेंस वगैरह का प्रीमियम पे किया है, या डेप्रिसिएशन लगाया है मशीनरी प्लांट फर्नीचर के ऊपर, तो उसका आपको डिडक्शन इस सेक्शन में दिया जाएगा। नेक्स्ट इज फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन और नॉर्मल पेंशन में क्या अंतर होता है सबको पता है। सो फैमिली पेंशन अगर मिलती है तो वो सैलरी नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है। इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज एंड अ सम इक्वल टू 1/3 और 15,000 whichever is lower shall be applicable to the assessee। 57 में आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। सो फैमिली पेंशन अगर रिसीव होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि कैपिटल नेचर का नहीं है, आप डिडक्शन ले सकते हो। और इनहैंस्ड कंपनसेशन या कंपनसेशन ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि 50% फ्लैट डिडक्शन मिलता है। जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, कंपनसेशन नहीं इंटरेस्ट, उसका 50% एग्जेम्प्ट होगा, सिर्फ 50% ही टैक्सेबल किया जाएगा। चलिए, so these are the deductions allowable. Moving on to deductions not allowable. In case of any assessee, पर्सनल एक्सपेंस है, कोई सा भी अमाउंट जिसके ऊपर आपका interest chargeable to tax है which is payable outside India on which tax is not being paid or deducted at source, तो ये अगेन हमारे पीजीबीपी के डिसअलाउंसेस जैसे ही हैं। तो अगर आप इंडिया के बाहर पेमेंट कर रहे हैं और उस पर टैक्स डिडक्ट नहीं किया है आपने, जिसका आपको एक्सपेंस का डिडक्शन लेना है, इट विल बी डिसअलाउड। पेमेंट अंडर द हेड सैलरीज, अगर आउटसाइड इंडिया है, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, डिसअलाउड। सिमिलरली अगर रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। सेम जो हम पीजीबीपी में पढ़ते हैं वही वाली चीज है। तो टैक्स या तो आपने डिडक्ट नहीं किया है या फिर डिडक्ट कर लिया बट 139(1) की ड्यू डेट के अंदर पे नहीं हुआ है, देन द अमाउंट 30% ऑफ सच एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड। एनी अमाउंट व्हिच इज मेड टू अ रिलेटेड पर्सन, अगेन दिस इज क्वाइट सिमिलर टू 40A2 जो हम उसमें पढ़ते हैं हमारे पीजीबीपी में, कि रिलेटेड पर्सन को अगर आपने एक्सेसिव पेमेंट्स करे हैं देन दैट अमाउंट शैल बी डिसअलाउड। ऑल्सो इफ 10,000 से ज्यादा का पेमेंट हुआ है which is in cash or basically not in cash but other than the prescribed modes, that is other than account pay check, account pay draft, ECS or any other electronic mode of payment to a single person in a single day, then आपका वो एक्सपेंस भी डिसअलाउ हो जाएगा। सो ये जो एक्सपेंसेस डिसअलाउंस है मैक्सिमम पीजीबीपी का ही केस है, तो आप सब लोगों ने वहां पर भी पढ़ा है, यहाँ पर भी वही चीजों का ध्यान रखना है। मेन इंपॉर्टेंट है कैजुअल इनकम जो होती है हमारी, जो फ्लैट 30% पे टैक्सेबल होती है, उससे रिलेटेड आपकी जितनी भी एक्सपेंसेस है वो अलाउड नहीं होंगे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। यहाँ पर क्योंकि आपका जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस का केस होता है वो ऐसा है कि नो डाउट उसकी इनकम जो है वो लक पे डिपेंड करेगी, उस रेस में क्या होगा, क्या उस पे डिपेंड करेगा विनिंग कितनी होगी, बट वो एक्सपेंस तो इनकर होना ही है। योर ओनिंग एंड मेंटेनिंग दी हॉर्सेस, तो उनका पूरा ध्यान रखना, उनकी फीडिंग, उनका हेल्थ का ध्यान रखना एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो वो खर्चा तो होता ही है विच इज अ जेन्युइन एक्सपेंडिचर, सो दैट एक्सपेंस इज अलाउड। अदरवाइज दैन किसी भी कैजुअल इनकम के अगेंस्ट आपको कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं होता है। जितनी भी इनकम होती है वो फ्लैट 30% पर आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। अगर सरचार्ज है तो सरचार्ज, नहीं तो सेस तो लगेगा ही सही। कोई एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, कोई चैप्टर 6A का डिडक्शन अलाउड नहीं है, ना ही आपकी 2.5 लाख की बेसिक एग्जामिशन लिमिट उसमें से अलाउेबल रहेगी। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स व्हिच आर टू बी केप्ट इन माइंड while we are discussing other sources head। तो छोटा हेड है, इंपॉर्टेंट हेड है हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम के, और एक क्विक रिवीजन के थ्रू हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो एक बार डिस्कस कर लिए। आप भी एक बार गो थ्रू करके देखें, क्वेश्चन सॉल्व करके देखें और इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करें अदर सोर्सेज को, कैपिटल गेन से, पीजीबीपी से, जहां जहां पर आपको एक कनेक्ट वो दिखेगा कि हाँ ये प्रोविजन यहाँ पर भी रिलेटेड है, तो एग्जाम में उस तरीके से सॉल्व करें, उस तरीके से लिखें, वो आपके आंसर की प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा इनहैंस करेगा, प्लस ऑल्सो आपके लिए सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। सो आप इस चैप्टर को गो थ्रू करें, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स फील फ्री टू discuss. All the best for your examinations.